Class 6. This is Khalid's team, and today is our geography lecture, and we are going to continue on with our chapter weather and climate. And the thing that we're going to study about today is calculation of temperature data. So, in our previous lesson, we learned about the instruments for calculating the temperature, maximum, minimum, and we studied about the sixes thermometer as well. So now let's see how we can uh, get the calculation of average daily or mean daily temperature range, average monthly temperature, and average annual temperature. So to get average daily or mean daily temperature, what we do is we take the maximum temperature and we take the minimum temperature. ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं by 2 and whatever we get is our average daily temperature of a day. Okay, daily temperature range जो है इसमें क्या होता है, it refers to the difference between the maximum and minimum temperature of a particular day. For example, अगर जनवरी का महीना है, अगर आपका सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है और लो जो है आपका बेसिकली क्या है, अगर 9 है, ठीक है, तो आप जब उसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी योर डेली रेंज, डेली टेम्परेचर रेंज. ओके, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर 28 लिखा है किसी डे का, ठीक है, और मिनिमम 24 लिखा है, फिर उसको माइनस कर दिया तो डिफरेंस जो है वो 4 डिग्री का आया. सो दैट इज़ बेसिकली द डेली टेम्परेचर रेंज. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एवरेज मंथली टेम्परेचर. एवरेज मंथली टेम्परेचर क्या होता है कि आप सारे दिनों का जो है वो एवरेज डेली टेम्परेचर निकालते हैं. जिस तरह ये निकाला हुआ है ना, तो पर डे के हिसाब से, जिस तरह अगर मार्च में आपके 31 डेज़ होते हैं, ठीक है, तो हर डे का आपने क्या करना है कि वो टेम्परेचर निकालना है और फिर उसको ऐड कर देना है, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ़ डेज़ इन मार्च कितने होते हैं, दे आर 31. सो फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है. सो उसका जो आपका आंसर निकलेगा दैट वुड शो द एवरेज मंथली टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द एवरेज एनुअल टेम्परेचर. ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह एवरेज मंथली टेम्परेचर हर मंथ का आप निकाल लें, ठीक है, फिर आप उसको क्या करेंगे कि सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, and you would be basically dividing it by 12 because there are 12 months in an year. So that is how you would be getting your average annual temperature. So these are like some of the common formulas for knowing the average daily temperature range, average monthly temperature, and average annual temperature. ठीक है. So किसी भी सिटी का, किसी भी जगह का आप लोग वो इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन, it's about rainfall. It's another element of weather. The first element of weather we studied was temperature. ठीक है. Now the second element of weather is rainfall. Okay, rainfall refers to the amount of rain received in an area over a period of time. ठीक है, ये इसकी कॉमन डेफिनेशन है. इट मीन्स द अमाउंट ऑफ रेन रिसीव्ड इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट सिंगापुर रिसीव्स पर ईयर इज 2000 मिलीमीटर्स. अच्छा, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो सिंगापुर पर ईयर 2000 मिलीमीटर्स रिसीव करता है. On the other hand, a desert may receive less than 250 millimeters. Why is there such a great difference in the amount of rainfall received? Okay, तो desert में जो है वो तकरीबन less than 250 millimeters आपको rain receive होती है. ठीक है. It has to do with the location of the place. ठीक है, कुछ जगह जो हैं वो they are quite wet and some places they are quite dry. So जो dry places होती हैं वो receive rain कम करती है. Okay, measuring the amount of rain. अब जिस तरह हम लोगों ने, हमारे पास temperature measure करने के लिए we had 3 instruments. We had you can call maximum thermometer, we had minimum thermometer, and we had the sixth thermometer. So अब हमारे पास rain measure करने के लिए कौन सा instrument है? We are having this rain gauge. Okay, rain gauge जो है basically वो क्या करता है? It measures the amount of rainfall. ठीक है. So rain gauge is an instrument used to measure the amount of rainfall. A simple rain gauge consists of an outer cylinder. ठीक है. एक ये लिखी सामने तस्वीर भी है. ठीक है. एक जो आपका रेन गेज है वो कंसिस्ट करता है एक आउटर सिलेंडर का, एंड अ कॉपर सिलेंडर, अ फनल, अ ग्लास बॉटल, एंड अ
measuring cylinder, ठीक है. So these are the components that are found in a rain gauge. The rain falls through the funnel and is collected in the bottle. तो वो funnel के through जो है वो rain घुसती है bottle के अंदर. The hole in the funnel is very small so as to reduce evaporation. और जो hole है funnel का वो बहुत small है कि ऐसा ना हो कि पानी गिरा हुआ है तो वो evaporate करने लग जाए, ठीक है. It goes back into the sky आप कहते हैं. Any excess rain that overflows is collected in the copper cylinder, ठीक है. अब ये funnel है, ठीक है. कोई भी अगर ये bottle हमारी भर जाती है और जगह नहीं है तो वो बेसिकली क्या होता है, excessive rain जो है वो आपकी copper cylinder के अंदर चली जाती है. The amount of rain collected is then poured into a measuring cylinder, ठीक है. तो जो amount of rain जो collect की होती है इस rain gauge ने, वो क्या किया जाता है, इसको measuring cylinder ये जो आपका है इसके अंदर जो है वो डाला जाता है. And it is calibrated in millimeters. और उसकी जो calibration हुई है वो millimeters के हिसाब से हुई है. The rainfall in the measuring cylinder is measured at eye level to obtain an accurate reading. तो उसको देखने का भी एक तरीका होता है, eye level पे उसको देखते हैं ताकि इसकी जो है वो एक्यूरेट जो है वो रीडिंग जो है वो मौसूल हो. ओके. यू विल नोटिस दैट 1/3 ऑफ द रेन गेज इज संक इनटू द ग्राउंड. अब देखें कि जो 1/3 है ना, मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर रखा होता है, ठीक है. इनटू द ग्राउंड इन फिगर 911, यानी फिगर 911 है. दिस इज़ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टॉपलिंग ओवर. ये इसलिए होता है ताकि ये ऐसा ना हो कि आपने ज़मीन पे रखा है तो अगर आपने उसको सिंक नहीं किया हुआ या इसको ज़मीन के अंदर दफनाया थोड़ा सा नहीं हुआ तो क्या होता है कि इससे गिरने का ख़तरा होता है, ठीक है. टू इंश्योर एन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ रेनफॉल द रेन गेज मस्ट बी प्लेस्ड इन एन एरिया फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ट्री एंड बिल्डिंग. तो अगर आपने देखना है कि किस तरह आपकी एक रेनफॉल कितनी आपको रिसीव हुई है, तो जो एरिया में जिस एरिया में आप प्लेस करते हैं ना अपना रेंज गेज, तो बेसिकली वो फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए. मतलब ऊपर कोई ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई इर्द गिर्द बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए. सो इट शुड बी इन एन ओपन एरिया. What other precautions do you think need to be taken to ensure an accurate collection of rain data? और जी कौन सी प्रिकॉशन होनी चाहिए कि आप देखेंगे किस तरह जो आपको एक्यूरेट डेटा जो है वो रेनफॉल का रिसीव हो. चलिए इसको नेक्स्ट कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ रेनफॉल डेटा. ओके. The amount of rainfall collected is recorded daily and is totaled for each month, ठीक है. तो डेली जो भी रेनफॉल होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ईच मंथ की जो है वो टोटलिंग ऐड किया जाता है. द टोटल एनुअल रेनफॉल इज़ द सम ऑफ द टोटल मंथली रेनफॉल रिसीव्ड फॉर द ईयर. तो बेसिकली क्या होता है, जो एनुअल रेनफॉल की अगर हम लोगों ने करना है ना, तो जितनी भी टोटल मंथली रेनफॉल जो है उस साल उस महीने में रिसीव हुई है तो उसका सम होता है, टोटल होता है. फॉर एग्जांपल अगर जनवरी के महीने में रोज़ाना के हिसाब से 20 मिलीमीटर अगर बारिश पड़ रही है, सो वी आर हैविंग लाइक 31 डेज़. उसको आप कर लें, उसको ज़रा मल्टीप्लाई, तो वो आपका क्या होगा, दैट वुड बी the total of the monthly rainfall, ठीक है. To find the average monthly rainfall for a particular month, for example January, you will need to get the sum of the rainfall for January for at least 10 years and divide it by the number of years, ठीक है. तो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने 10 साल का बस डेटा होना चाहिए जनवरी में रेनफॉल का, और उस 10 साल के डेटा को जो खाली जनवरी की रेनफॉल है उसको आपने सम अप करना है विद द नंबर ऑफ ईयर्स. अब 10 साल का लिया था हम लोगों ने, डिवाइड बाई 10 कर देना है, ठीक है. सो दैट वुड बी अवर जनवरी एवरेज जनवरी रेनफॉल. इफ़ यू यूज़ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड्स फॉर एन एरिया, यू लाइकली टू गेट अ बेटर रेनफॉल पैटर्न फॉर ऑफ दिस एरिया. सो बेसिकली उन्होंने ये क्या किया हुआ है कि जनवरी फरवरी सबको उन्होंने वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, रेनफॉल ली हुई है, फिर इनको वो डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ ईयर्स भी कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली इन्होंने इसका सम अप निकाला हुआ है. खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. अच्छा, विंड जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है कि इस तरह वाली मूवमेंट, नॉट द स्ट्रेट वन, नॉट लाइक दिस, बल्कि इस तरह वाली मूवमेंट, ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और ये एक ऐसी मूवमेंट है कि इट इज़ फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें कि वार्म एयर हमें पता है कि वो राइज़ करती है, ठीक है. तो ये लो प्रेशर एरिया है, और कोल्ड एयर जो है वो सिंक करती है, नीचे आती है. सो दिस इज़ हाई प्रेशर एरिया, और विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली इट टेल्स अस के हाउ
विंड इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। जब एयर वार्म होती है तो क्या होता है, वो एरिया जो है वो लो प्रेशर का होता है, और जहाँ पे हवा ठंडी होती है और वो कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है, और वो फिर क्या होता है, वो एरिया हमारा हाई प्रेशर का होता है। सो हमेशा विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। ओके ओके, मेजरिंग विंड डायरेक्शन। अब विंड को भी मेजर करने का एक हमारे पास एक आला है, वी आर हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, देयर आर मेनी साइंस अराउंड अस दैट कैन टेल अस वेयर द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम। मतलब अगर हम लोग वैसे नॉर्मली देखेंगे, हमने हवा देखनी कि हवा कहाँ से कहाँ की चल रही है, सो वी कैन लुक एट द ट्री, वी कैन लुक एट द लीव्स, ठीक है। वो उसकी जो हिलने की जो है पैटर्न, दैट कैन एटलीस्ट टेल अस some that can give us a hint that the wind is blowing from this direction. लेकिन हमारे लिए स्पेसिफिकली हम वी आर हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज द विंड वेन, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रीली मूविंग पॉइंटर एंड 4 कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं वो ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ का है आपका, ठीक है। द पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द डायरेक्शन वेयर द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम। डू यू नो वाई दिस इज सो? अच्छा, अब ये ऊपर जो है ना, ये मुर्गी बनी हुई है और ये पॉइंटर है। सो ये बेसिकली फ्री फ्लोइंग होता है। अगर हवा यहाँ से यहाँ की जा रही है तो ये इस तरह होकर सीधा हो जाएगा, इट वुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. The wind vane in figure 915 okay indicates that the wind is blowing from the southwest. Okay, अब ये जो है वो wind जो है वो southwest से blow हो रही है, ठीक है। It is important for the wind vane to be placed in a high open place in order for accurate readings to be taken. Any form of obstruction will affect the reading. So wind vane जो है, इसके अंदर एक पॉइंटर होता है और उसके 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होता है, ठीक है। और पॉइंटर जो है हमेशा उसी तरफ पॉइंट करता है जहाँ पे डायरेक्शन विंड की आ रही हो। सो अब विंड जो वेन जो है उसको बेसिकली एक ओपन एरिया में हाई प्लेस पे रखना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेट जो हैं वो रीडिंग्स आएँ। Okay, so we have studied about the rainfall, element of weather, rainfall, and also the wind. ठीक है, inshallah. In our next lesson, we shall be continuing, and we would be doing this wind, how wind is recorded. ठीक है, तो inshallah हम लोग उस next अपने lecture में कर लेंगे. For the timing, I have given you the answer of this question. ठीक है, we are going to write about the formulas of these 4 things for the calculation of temperature. Thank you.